Hi everyone and welcome to my college, and today's session is going to be a complete guide to becoming a DevOps engineer in 2025. In today's session, we are going to cover the different skills that we need to learn, the tools that we require, and I've also prepared a step-by-step documentation for all of us that can help us in our DevOps journey. Now, before we start the session, there's a quick misconception that I want to clear out in the beginning, which is कि generally majority अच्छी companies के अंदर जो DevOps के roles होते हैं, they are not entry level roles जिनको कोई fresher अपनी degree complete करने के बाद या किसी master class को, किसी boot camp को, किसी cohort को करने के बाद उन roles को ले सकता है. Majority companies prefer to hire an already experienced working professional for the role of a DevOps engineer. तो इसीलिए generally जो DevOps engineers होते हैं, they start their journey in the tech industry as a software engineer, as a software developer, or maybe as a database administrator or with any other tech role. And then after learning the required DevOps skills, they make the switch from their current profile to the DevOps engineer profile. तो ये एक चीज़ है जो हमें अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, especially जब हम इस सेशन को देख रहे हैं as a fresher. अब when we talk about the word DevOps, it is a combination of two words, development and operations. Generally कोई भी application किसी कंपनी के अंदर अगर बनती है, then two departments are involved. First is the development department जो application को build करता है, code करता है, उसे test करता है, and then there's the operation department जो उसे deploy करता है या उसे future के लिए maintain करता है. अब generally DevOps engineer का जो role होता है, it serves as a link between these two departments. Generally, DevOps engineer is not concerned with how the application is developed, but अगर development का हमारे पास already prior experience होता है, then वो हमें हमारे role के अंदर और ज़्यादा help ही कर रहा होता है. Generally, majority companies के अंदर जो DevOps engineer का role होता है, that is to ensure कि अगर एक बार हमारी application successfully deploy हो गई है, तो उसके बाद future के अंदर जितने भी changes आने वाले हैं, जितने भी newer versions आने वाले हैं, वो भी seamlessly जाकर अच्छे तरीके से deploy हो जाए and उस application को हम अच्छे से maintain कर सकें. So this entire process is the responsibility of the DevOps engineer, and इसके अंदर दो चीजें ensure करनी होती है DevOps engineer को. सबसे पहला तो ये जो पूरा process है, this should work in a continuous manner, क्योंकि बहुत सारे different changes हैं जो एक application के अंदर आते हैं, बहुत सारे different versions आते हैं, तो ये पूरा process continuous manner के अंदर चलता रहना चाहिए. And secondly, the DevOps engineer needs to ensure that this entire process happens in an automated way, क्योंकि आज की डेट में majority जो हमारी deployment pipeline होती है वो manually work नहीं करती, and that is why in the role of DevOps there's a lot of automation which is involved. So this was an overview कि एक DevOps engineer exactly एक organization के अंदर करता क्या है. आज हम different steps के थ्रू सीखने वाले हैं कि क्या क्या skills and technologies हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है. सबसे पहली चीज़ जो है DevOps engineer हमें आनी चाहिए, those are Linux fundamentals, या इसे भी अगर और जनरलाइज करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स. अब वाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स? क्योंकि जनरली हमारी जो भी एप्लीकेशन डेवलप होती है वो आज की डेट में हमारे वर्चुअल सर्वर्स के ऊपर डेवलप होती है, और वर्चुअल सर्वर्स को सेटअप करने के लिए हमारे पास अच्छी खासी ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए. जनरली मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर्स होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर, दे आर लिनक्स बेस्ड. कुछ सर्वर्स होते हैं जो विंडोज़ बेस्ड भी होते हैं, पर मेजॉरिटी हमें जो फोकस करना है वो लिनक्स फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है. तो इसीलिए लिनक्स की हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, एंड वी शुड also be familiar with command line interface. Generally इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे कॉमन शेल है या सबसे कॉमन CLI है जो यूज होता है, that is called bash. तो इसीलिए we should learn about bash and the different commands that are associated with it. इसके साथ में हमें सीखना है about OS processes and permissions, PS skill, chmod जैसी कमांड्स का क्या यूजेज होता है, एंड इसके अलावा भी और क्या डिफरेंट कमांड्स होती हैं जो bash shell के अंदर यूज होती हैं. We need to learn about package management जिसमें हमारा apt enum आ जाता है, एंड इसके साथ में we should also be familiar with using text editor especially from the CLI, जिसके अंदर Vim is one of the most popular options. तो Linux fundamentals के अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, हमें bash and bash कमांड्स के बारे में सीखना है, और ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कवर करते हुए चलना है. उसके बाद हमारा स्टेप 2 आता है, विच इज़ टू लर्न अबाउट नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स. अब कंप्यूटर नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं, इट प्लेज एन इंटीग्रल रोल बोथ इन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. तो उसकी फंडामेंटल नॉलेज अबाउट हाउ कंप्यूटर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इनफैक्ट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वो फंडामेंटल से भी एक लेवल ऊपर तक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हमें सीखनी है, दैट इंक्लूड्स द OSI, TCP/IP मॉडल, डिफरेंट प्रोटोकॉल जो एग्जिस्ट करती हैं जैसे HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SSH किस तरीके से वर्क करता है, हमारे IP एड्रेसेस हो गए, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, DNS डोमेन नेम सर्वर्स हो गए, हमारे डिफरेंट जो नेटवर्क इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जब हम मेंटेन कर रहे होते हैं एक ऑलरेडी डिप्लॉयड एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर क्या क्या डिफरेंट इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग इश्यूज जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है ताकि उन्हें टैकल करके हम रिजॉल्व कर सकें. इसके अलावा वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू कन्फिगर फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सी सर्वर्स. अब गोइंग फॉरवर्ड जब हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो फ्यूचर में जाके वील ऑल्सो
also be learning about load balancer and things like caching servers. अब इन concepts को सीखने के साथ में there is one more tool that we can go and explore which is called Wireshark. Wireshark is essentially a network analyzer जो हमें networking को और deeply understand करने में help करता है. तो we can also go and explore this. Next thing that we are going to learn is scripting or learning about a programming language. अब as we have discussed before, as a DevOps engineer, automation of tasks is really important. और इन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हमें जनरली स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं. अब ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं. इट कुड बी अ क्रॉन जॉब, इट कुड बी बैकअप ऑटोमेशन, इट कुड बी सिस्टम मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, इट कुड बी लॉग एनालिसिस और एनीथिंग एल्स. अब जनरली जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें से 3 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं इंडस्ट्री के अंदर, पाइथन, रूबी एंड गोलैंग. और इनमें से भी सबसे पॉपुलर ऑप्शन हमारे पास पाइथन होता है बिकॉज इट इज रियली सिंपल एंड ईजी टू लर्न. एंड इसके साथ में पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन द इंडस्ट्री. अब जब भी हम पाइथन सीखने जा रहे हैं या कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सीखने जा रहे हैं तो उसके अंदर वी नीड टू लर्न अबाउट द सिंटैक्स एंड द फंडामेंटल्स. वी नीड टू लर्न अबाउट द यूजफुल लाइब्रेरीज जो हम ऑटोमेशन के अंदर यूज करते हैं. वी नीड टू लर्न अबाउट फाइल हैंडलिंग एंड हाउ टू राइट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज. अब इसके साथ में वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ फ्री 10+ आवर्स ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन ऑन दिस यूट्यूब चैनल. अगर हम पाइथन सीखना चाहते हैं तो वहां से जाकर भी सीख सकते हैं. द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी पड़ेगी दैट इज वर्जन कंट्रोल. नाउ एज अ डेवलपर हमने कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी यूज़ किया होगा. गिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस इन द इंडस्ट्री. तो गिट की हमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए. अब गिट के अंदर वी नीड टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट गिट कमांड्स जैसे इनिट हो गया, क्लोन हो गया, पुश पुल, मर्ज, रीबेस हो गए. वी शुड बी अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग. हमें मर्जिंग, कैसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. अब हमने ऑलरेडी गिट एंड गिटहब का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल यूट्यूब पर डाला हुआ है. इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट चीज स्टेप 5 हमारे लिए होगा टू लर्न अबाउट क्लाउड. बेसिकली आज की डेट में जितनी भी एप्लीकेशन मेजॉरिटी केसेस में डिप्लॉय होती हैं दे यूज सम काइंड ऑफ अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज बेस्ड अपॉन द क्लाउड. अब जब भी हम क्लाउड की बात करते हैं, चाहे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हम जनरली क्लाउड सर्विसेज को यूज कर ही रहे होंगे. अब क्लाउड प्रोवाइडर्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर देयर आर 3 मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस विच इज AWS बाय Amazon, Azure by Microsoft एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. इनके अंदर हम इन तीनों में से कोई भी एक सीख सकते हैं बट इंडस्ट्री के अंदर AWS एंड Azure ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू GCP. एंड इन तीनों में से भी सबसे जो पॉपुलर ऑप्शन है आज की डेट में दैट इज Amazon वेब सर्विसेज. अब हमें ये तीनों सीखने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू लर्न वन एट अ टाइम और उसके ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग कमांड लेकर आ सकते हैं. इफ वी वॉन्ट वी कैन ऑल्सो डू अ सर्टिफिकेशन. तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वी कैन इन्वेस्ट सम टाइम टू गेट एन AWS और एन Azure सर्टिफिकेशन. अब जब भी हम AWS या Azure सर्विसेज की बात करते हैं देयर आर काउंटलेस सर्विसेज आउट देयर. पर हमारे लिए गोल उन सबको सीखना नहीं होना चाहिए. हमारे लिए गोल होना चाहिए कि या तो हमारा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक जितनी भी सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट है या तो हम उनको जाकर सीख लें या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज होती हैं सबसे पहले हम उन्हें जाकर सीखें. जैसे वी टॉक अबाउट AWS वी कैन लर्न टू यूज सर्विसेज लाइक EC2, S3, AWS Lambda, RDS हो गया, Route 53 हो गया, CloudWatch हो गया, CloudFront हो गया. तो इन सारी डिफरेंट सर्विसेज के बारे में जाकर हम सीख सकते हैं. जब भी हम किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर को पिक करते हैं तो डिफरेंट सर्विसेज की टर्म में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टू कन्फिगर एंड मैनेज सर्वर्स एज वेल एज डेटा. इसके अंदर AWS में EC2, S3 एंड RDS की हमें नॉलेज होनी चाहिए टू मैनेज यूजर्स, ग्रुप्स एंड डिफरेंट रोल्स जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्ट करते हैं, टू सेटअप एंड मैनेज आइसोलेटेड नेटवर्क्स जैसे हमारे पास AWS वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया. सो दिस वाज स्टेप 5. द नेक्स्ट स्टेप which is step 6 is to learn about the concept of microservices and containerization. अब containers are very popular in the industry nowadays. They basically solve a very classical problem in the tech industry which is कि it works on your machine but it doesn't work on my machine. तो इस problem को solve करने के लिए we have this concept of containers. Containers के अंदर we basically package the entire application and its dependencies into a single unit which we call a container. Containers को generally हम microservices architecture के अंदर काफ़ी ज़्यादा use करते हैं जिसमें हर एक single service को हम independently deploy करते हैं as a container. अब I've made a detailed tutorial about what microservices architecture is. If you want, you can also watch that tutorial. जब भी हम containerization की बात करते हैं, Docker is one of the most popular tools जो containerization के अंदर use होता है. तो generally majority companies में जहाँ पर भी microservices architecture and containers use होते हैं, वहाँ पर it is a given कि Docker is being used.
तो डॉकर को हमें जाकर सीखना पड़ेगा. वी नीड टू लर्न अबाउट द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वर्चुअलाइजेशन इज, व्हाट कंटेनराइजेशन इज. वी नीड टू लर्न अबाउट डॉकर इमेजेस, किस तरीके से हम मैनेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स को. द बेसिक डॉकर कमांड्स जैसे रन हो गया, ps हो गया, बिल्ड हो गया. हाउ टू राइट डॉकर फाइल्स, हाउ टू यूज डॉकर कंपोज, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट जब हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं. अब द नेक्स्ट स्टेप इन द इंटायर प्रोसेस इज टू नो हाउ टू सेट अप अ CI/CD pipeline. Basically, CI/CD stands for Continuous Integration, Continuous Deployment. It is represented by an infinite loop because it is a continuous, never-ending process जो चलता ही रहता है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर. अब लेट्स सपोज हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसे हमने डेवलप किया हुआ है. कल को इस एप्लीकेशन के अंदर देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपग्रेडेशंस. कल को हो सकता है हम कोई नया वर्जन निकालें, तो ये जितने भी चेंजेस हमारे पास कोड के अंदर होंगे, इन सारे चेंजेस को हमें सर्वर पर पुश करना पड़ेगा. और ये जो पूरा काम होता है, दिस इज डन वाया अ CI/CD पाइपलाइन. अब जनरली CI/CD पाइपलाइन 4 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर वर्क करती है. सबसे पहले वी सोर्स द कोड यानी गेट द कोड, देन वी बिल्ड द कोड, वी बिल्ड द एप्लीकेशन विद द न्यूअर चेंजेस, देन वी टेस्ट द एप्लीकेशन एंड उसके बाद वी डिप्लॉय द एप्लीकेशन ऑन टू द सर्वर. और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, इसी को हम पाइपलाइन कहते हैं. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड बिकॉज इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इफ मैन्युअली डन दिस इज एरर प्रोन. इसीलिए इस पूरी ऑटोमेशन साइकिल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जनरली हर एक अच्छी टेक कंपनी के पास अपना एक इंटरनल CI/CD सेटअप होता है. अब जनरली जब हम CI/CD की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट कैन हेल्प अस ऑटोमेट दिस एंटायर प्रोसेस, जिसमें जेनकिंस होता है, वी हैव गिटहब एक्शन CI/CD, we have GitLab CI, we have Circle CI, Travis CI. इसमें one of the most popular options is Jenkins. तो जाकर हम सिर्फ एक टूल को समझ सकते हैं. जनरली ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही प्रोसेस रहता है हर किसी का, बट एक के ऊपर हमारी अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो कल को अगर हमें किसी दूसरे टूल पर भी स्विच करना होगा देन इट विल बी कंपैरेटिवली ईजियर फॉर अस. एंड जनरली हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने लिए एक अलग टूल को यूज़ कर रही होती है, तो एक साथ सारे सीखना ज़रूरी नहीं है. स्टिक टू वन एट अ टाइम. एंड दैट इज ऑल्सो माई विजन बिहाइंड दिस एंटायर गाइड, बिकॉज इफ यू नोटिस तो हर स्टेप में मैंने आपको स्पेसिफिकली एक टूल या एक टेक्नोलॉजी बोला है सीखने के लिए, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को सीखेंगे एक टाइम पर एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे तो एक जो ओवरव्यू होता है पूरी डेवॉप्स को सीखने का वो हमारे पास बेटर तरीके से आएगा. एंड उसके बाद अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के अंदर और ज़्यादा डिटेल में जाकर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को सीखना चाहते हैं फॉर डूइंग द सेम वर्क, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू डू दैट. Now the next step in the process is to learn about infrastructure as code tools. अब जब भी किसी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एप्लीकेशन डेवलप होती है उसे जनरली हम अपने डेव एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप करते हैं, देन वी टेक इट टू द टेस्ट एनवायरनमेंट, देन वी टेक इट टू द स्टेजिंग एनवायरनमेंट एंड फाइनली उसे हम अपने प्रॉड एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करते हैं. अब जो सारे के सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं इन्हें क्रिएट अगर हम मैनुअली बैठ कर करें तो उसमें वही सेम प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है. यानी सबसे पहला इट इज़ गोइंग टू बी अ मैनुअल टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड उसके साथ में दिस एंटायर प्रोसेस इज़ वेरी एरर प्रोन. तो इसीलिए हमारे पास कोई ऑटोमेटेड तरीका होना चाहिए सबसे पहला तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने का, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सेपरेट वे टू कन्फिगर दैट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एबल टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशंस देयर. तो जनरली यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल्स. इनमें सबसे पहले टूल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोविजनिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड दूसरे टूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू कन्फिगर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रोविजनिंग के अंदर हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स होता है टेराफॉर्म, विच इज़ वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री. तो हमें इसे जाकर सीखना चाहिए. इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न टेराफॉर्म. अब टेराफॉर्म इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट यूजेज अ डेक्लेरेटिव अप्रोच. इसके अंदर हमें डेक्लेरेटिव कॉन्फिगरेशन फाइल्स लिखनी होती है जिसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ ये बताना है कि व्हाट शुड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर लुक लाइक, हमें किस तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करना है उसके स्टेप्स लिखकर नहीं देने होते हैं. एंड दैट इज वाई इट मेक्स द इंटायर ऑटोमेशन प्रोसेस वेरी सिंपल. एंड यही जो डेक्लेरेटिव अप्रोच होती है ये हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल बना देती है. यानी अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके अंदर कल को अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू ऐड 2 न्यू सर्वर्स या इफ़ वी वांट टू अपडेट द वर्जन ऑफ समथिंग, तो वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. या फिर समहाउ इफ़ वी वांट टू रेप्लिकेट द इंटायर डेव एनवायरनमेंट इनटू आवर प्रॉड एनवायरनमेंट, तो वो प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है. इसके साथ में वी हैव IAC टूल्स फॉर कन्फिगरिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट सर्वर्स हैं. अब इन सर्वर्स पर अगर हमें एक साथ MySQL का कोई एक वर्जन इंस्टॉल करना है तो उसके लिए वील यूज समथिंग लाइक Ansible. Ansible इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल फॉर कन्फिगरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इसी को जाकर हमें सीखना है. इसके भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जैसे Puppet हो गया, जैसे Chef हो गया, बट इफ़ वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Terraform एंड Ansible then this is one of the most powerful combination that we can use in terms of infrastructure as code tools. एंड इन्हीं दोनों टूल्स को हमें सबसे पहले जाकर सीखना है अगर हम IAC टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो. अब नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस फॉर अस इज टू लर्न अबाउट ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट.
ऑर्केस्ट्रेशन का जनरली मतलब है कि जितने भी टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑटोमेशन चल रहा है, इस इंडिविजुअल सेटअप से अब कैसे हम हर एक चीज़ को नाउ वी आर गोइंग टू बाइंड इट टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, इनटू अ सिंगल ऑटोमेटेड यूनिट दैट फ्लोज टुगेदर। अब जब भी हम ऑर्केस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन जिसके अंदर वी आर यूजिंग कंटेनर्स। अगर हम अपनी सर्विस को बिल्ड कर रहे हैं एज कंटेनर्स, तो जनरली हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स होंगे जिनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब इफ वी आर बिल्डिंग अ स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम डॉकर कंपोज को यूज़ कर सकते हैं। बट एज सून एज वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो लार्ज स्केल पर डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ पर वी नीड सम काइंड ऑफ एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स की टर्म्स में कुबरनेटीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस आउट देयर दैट वी शुड लर्न अबाउट। अब कुबरनेटीज की जब बात करते हैं, वी शुड लर्न हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज कुबरनेटीज क्लस्टर्स, किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन कुबरनेटीज। वी शुड लर्न अबाउट द डिफरेंट कमांड्स, जैसे अप्लाई हो गया, बिल्ड हो गया, डिलीट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें जाकर सीखनी पड़ेंगी। Now comes the final step in the entire process, which is to learn about monitoring and logging. जनरली अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो वी नीड टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द एप्लीकेशन, वी नीड टू कॉन्टिन्यूसली ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमें कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर अपने कोई प्रॉब्लम्स के लिए सर्च करना होता है, डिस्कवर करना होता है, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर बैकग्राउंड में हमारी लॉगिंग जो है वो चलती रहती है, बिकॉज एनी टाइम इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो हमें लॉग्स को जाकर चेक करना पड़ेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और फ्यूचर में हम उस चीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग टूल्स हैं जो इंडस्ट्री अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल इज कॉल्ड प्रोमेथियस। वी कैन यूज प्रोमेथियस टू मॉनिटर आवर एप्लीकेशन एंड गैदर द डेटा, एंड फिर इसी गैदर डेटा को बेटर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए वी हैव टूल्स लाइक ग्राफाना, जो हमें अपने डेटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहे होते हैं। अब इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अदर टूल्स इन द इंडस्ट्री, जैसे AWS क्लाउड वॉच हो गया या एल्क हो गया, बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस, और हमें सबसे पहले जाकर इन्हीं को सीखना है। सो दिस वॉज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ द इंटायर डेवॉप्स प्रोसेस, जिसके अंदर हमने बात की कि क्या क्या स्टेप्स हैं। वी टॉक्ड अबाउट द टूल्स दैट वी नीड टू लर्न, एंड उसके साथ में हमने ये भी सीखा कि उन टूल्स को हमें किस प्रोसेस में और क्यों यूज़ करने की ज़रूरत है। अब दीज वर ऑल द टूल्स जिनके ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा फॉर आर इंटायर डेवॉप्स जर्नी। पर अगर इन सारे टूल्स को एक बार हम सीख लेते हैं, तो हम एज अ डेवॉप्स इंजीनियर जाकर कुछ और एडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं, जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके अंदर हम दो चीज़ों को एडिशनली आगे फ्यूचर में, इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद जिन्हें एक्सप्लोर करना है, उनमें से सबसे पहला हमारे पास एक सर्विस मैश आ जाती है। जनरली वेन एवर वी आर यूजिंग अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, तो उसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एंड फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज विद ईच अदर, हम एक सर्विस मैश को यूज कर सकते हैं। Istio इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस मैश इन द इंडस्ट्री एंड इट इज वाइडली यूज्ड, तो उसे हम जाकर सीख सकते हैं। सेकंड चीज जिसे हम सीख सकते हैं इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ आवर जर्नी इज समथिंग कॉल्ड GitOps। GitOps वैसे इज जनरली नॉट वेरी वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड इट्स अ वेरी रीसेंट कॉन्सेप्ट, पर फिर भी जाकर इसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। GitOps के अंदर बेसिकली हमारी जो गिट रेपोजिटरी है, वी ट्रीट इट एज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ for managing as well as automating our different operations. तो GitOps के अंदर भी there are multiple tools that we have. Argo CD and Flux are the two most popular tools जिन्हें हम जाकर explore कर सकते हैं। So this was our entire DevOps roadmap जिसे हम follow कर सकते हैं to become a DevOps engineer in 2025. And I hope that today's session has contributed positively in your entire learning journey and you've learned something new from today's session about being a DevOps engineer. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। Till then keep learning and keep exploring.